Good afternoon, ma'am. Everybody is joined in, but still let's start. So yesterday we were seeing the methods of money laundering. One of it is smurfing, which means depositing small amounts in financial institutions, because usually as per the regulator, there is limit to the money you can deposit. So therefore, they try to circumvent it by depositing only a small amount of money, and they make multiple deposits. So you would have seen ki jo bhi banks anywhere banking allow karte hain, right? Are you aware of the concept of anywhere Yes, banking? ma'am. मैम जो कहीं पर भी Hello हो। guys, यस मैम। am I audible to you? यस मैम यस मैम। Hello, यस मैम वॉइस नहीं आ am I रही है क्या audible आपकी? यस मैम। or am I not? यस Shalini? मैम Yes, यस ma'am. मैम। You're audible. Okay. Hello. यस Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. Okay. Fine. So have you heard of anywhere Any? banking? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is it? मैम किसी भी नेशन से मैम आप कहीं भी मतलब Nation से बैंक नहीं, anywhere banking means मैम जो कस्टमर्स को अलाउ करते हैं मैम कहीं से भी मैम अक्रॉस द नेशन मैम इन्वेस्ट करने को। across the nation. Correct. यस Correct. मैम। Right. Yeah. So that is anywhere banking, and most of the banks allow it, but they have limits on anywhere banking, because now it's still okay, but earlier all the branches were not on the same network, so it was not possible to monitor if somebody was doing smurfing. But to combat that, the banks have anywhere banking limits. Okay. So because people can do this. एक ने दिल्ली में डिपॉजिट किया, एक ने मुंबई में डिपॉजिट किया, एक ने चेन्नई में डिपॉजिट किया. So that way smurfing is possible. So to prevent smurfing, banks have these limits. So smurfing is a process of using मैम स्मर्फिंग का मतलब क्या होता है? smurfing. मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ना यू आर डिपॉजिटिंग मनी, ये पता ना चले, राइट? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैम जो फ्रॉड्स होते हैं मैम ये सब होता है मैम ये इसी के थ्रू होता है क्या? फ्रॉड्स, हाँ फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग में एक ही तरह का फ्रॉड को आप कैसे डिफाइन करोगे? फ्रॉड इज लाइक फूलिंग द लॉ, नो? यस मैम। दिस इज नो मैम आल्सो मैम अ वे जैसे ऑफ मनी फूलिंग का द लॉ. फ्रॉड जैसे मैम विजय हमारे पैसा लेके भाग गए मैम वैसे ही ना कि अलग अलग उसमें डिपॉजिट करते पता नहीं भी नहीं ना नहीं चले नहीं नहीं पैसा नहीं, लगा व्हाट ऐसा कुछ। विजय माल्या वाज हैज डन इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग. वी आर यस टॉकिंग मैम। अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग. विजय माल्या ने क्या किया है? लोन लेके लौटाया नहीं है. अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है उन्होंने. मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस अलग से हो सकता है. जैसे अगर आप देखो तो नीरव यस मोदी, मैम। मेहुल चोकसी पे मनी यस लॉन्ड्रिंग का मैम। भी केस चल रहा है. तो ये यस दोनों मैम। अलग अलग क्राइम है. ओके मैम। ओके, तो पैसा लेके नहीं लौटाया तो वो क्रेडिट क्राइम हो गया कि क्रेडिट लिया आपने और नहीं लौटाया, तो क्रेडिट रिस्क की वजह से हुआ. तो ये दो अलग रिस्क हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम इन टर्म्स ऑफ रिस्क. So these are both risks to the bank. Credit risk is a risk of not getting the money back or the loan back, and money laundering is a risk of converting illegal money into legal money. Okay, so what is the difference? There you're using somebody else's money. In risk, it is somebody else's money. Money मैम प्लानिंग मैम। is legal. That is, yeah, it is money obtained by illicit means. To convert it into legal money. So that is the difference in a single game.
So the use of false identity to conduct these transactions is common. Banking officers should be vigilant looking for false identification documents. In an attempt to conceal their activity, money launderers will often resort to smurfing activities to get illicit funds into a financial institution. So this is my personal. अगर कोई customer आपसे ज़्यादा friendly हो रहा है, you have to be careful. Not necessary कि वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हो, but usually try to hold on a conversation with you and try to distract you, right? Be friendly with you, very close. हाँ, right. So इसलिए ना you have to be cautious about these kind मैम of मतलब वो people. अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या Correct. कैसा? हाँ, और कैश काउंटर पे तो ये मतलब मैम एकदम उनकी इंटेंशन गलत होती है उस टाइम Correct. पे. तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होता है एक्चुअली कैश काउंटर पे कि आप बहुत देर ज्यादा बात मत करिए कस्टमर से, क्योंकि कैश एकदम सामने रखा है. आपने देखा होगा कैशियर कैसे बैठता है, कैश एकदम सामने रखा है. और मैम क्योंकि वो आपका मन डिस्ट्रैक्ट करके पैसे चुरा सकता है, उधर कर सकता है. राइट. तो अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है बिकॉज ऑल बैंक्स हैव सीसीटीवी कैमरा, पर यू वुड हैव हर्ड थिंग्स लाइक कि कोई बातों में उलझा के पैसा उठा के ले गया कैश काउंटर से, या फिर ज्यादा पैसा दे दिया बात बात में, या कम पैसा ले लिया. एवरीथिंग इज अ रिस्क. मैम इसीलिए आपने देखा होगा जो कैशियर का मतलब जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मतलब मेंशन भी होता है कि आप अपने पैसे को उन्हीं के सामने काउंट करिए. अगर पैसे बाद में कम ही निकलेंगे, ज्यादा तो कोई रिटर्न करने आते नहीं है, तो फिर वो बैंक की नहीं ज्यादा निकलता है तो इट डिपेंड्स ऑन योर. मतलब वो हमारे ऊपर होता है कि हमारी अच्छाई है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं बैंक को कि ये ज्यादा पैसा आ गया, वरना कोई इतना अच्छा होता नहीं है. और जस्ट बिकॉज ये चीज आपने बोली है तो Yes, जस्ट ma'am. लेट मी टेल यू वन थिंग. अभी देयर आर सम CSR प्रोग्राम्स व्हिच आई एम डूइंग, जिसमें यूथ को ट्रेन करना है कि नौकरी क्यों नहीं मिलती है. क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में नौकरी की भरमार होती है और डेवलपिंग कंट्रीज में Yes, नौकरी ma'am. नहीं मिलती है. वन ऑफ द रीजन इज द यूथ इन आवर कंट्री डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ इथिक्स. तो यही है कि हम लोग को अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो इथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा. तो अगर ज्यादा कभी मिल जाए please go and return. of course. तो या सो दिस इज अ रेलेवेंट पॉइंट कि हम लोग की कंट्री में थोड़ा सा वैल्यूज आज के जमाने में कम हो गई हैं, इसीलिए वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में भी प्रॉब्लम करती है. तो फॉर एम्प्लॉयबिलिटी यू नीड दोज वैल्यूज. एनीवेज, कमिंग बैक टू स्मर्फिंग. Right, so yeah, and then this can be other ways like cash can be exchanged for traveler's check, food stamps or other monetary instruments which can then also be deposited into financial institutions. तो ये मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जितने भी आपके सुपरमार्केट से वहां पे आपने देखा होगा कि लोग जो है भर भर के सामान खरीद रहे थे. दैट वाज मनी लॉन्ड्रिंग. सो यू कांट पुट इट इन द बैंक, you can't show it, so spend it. Then placement. Yeah, मैम मुझे मनी लॉन्ड्रिंग तो मतलब है, लेकिन मैम आप इस बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को मैम वो कर दीजिए, मैं दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ. money laundering is the process of doing it. Yes. Anti money laundering are the things you have to do to prevent money laundering. Okay, ma'am. Right, so money laundering obviously is the way of converting black money to white money obtained from illicit means into legal money. Anti-money laundering are the steps taken by the government or the processes told by the government to combat money laundering. मैम कि उसको प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं, मतलब मनी को. हाँ, right. Okay, ma'am. तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है PMLA, Prevention of Money Laundering. Yes, ma'am. Act. So we have to work as per the PMLA. So placement, as we have understood, can be done is like introducing the money into the financial system. So placement can also be done by purchasing goods and services such as travel vacation packages, insurance policies, jewelry, and other high ticket items.
तो अभी अगर आप देखो ज्वेलरी भी लेने जाओ तो अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही है। अगर आप ज्वेलरी भी लेने जाओ तो एटलीस्ट जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे तनिष्क और ये सब जो है दे विल आस्क, दे विल डू अ केवाईसी, आपका नाम चाहिए, क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट। आपने भी सुना होगा अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में कि जो भी पैसा होता है दे कन्वर्ट इनटू गोल्ड, दैट इज द इजीएस्ट। इस पे भी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट अ कंट्रोल। So these goods and services can then be returned to a place of purchase in exchange for a refund check, which can then be deposited at a financial institution with less likelihood of detection as being suspicious. Then smuggling cash out of a country and depositing that cash into foreign financial institution is also a form of placement. तो जो हम लोग स्विस बैंक और पनामा पेपर्स की बात करते हैं, that is this. Also, illegally obtained funds can also be funneled into legitimate business as cash receipt and deposited without detection. So after placement, it is layering. So you try to conceal the transaction and you use smurfing for that. So layering is the process of moving and manipulating funds to confuse their source as well as complicating or partially eliminating the paper trail. This is the second stage of money laundering. So अगर आप यहाँ पे देखो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं which is smurfing. So the money passes from bank A to bank B to bank C और फिर consolidate होके bank D में पहुंच गया. So it may involve moving funds in various forms through multiple accounts at numerous financial institutions, both domestic and international, in a complex series of transactions. Layering transaction may become very complex and involve several of these methods to hide the trade of funds. So this is the entire thing of money laundering. First is placement. The second is layering. तो ये भी होता है ऑब्टेनिंग सीडी। सीडी मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, इसीलिए इफ यू लो सी बैंक्स विल नॉट एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर मोर देन 20,000। 20,000 से ज्यादा आप कैश में एफडी नहीं बना सकते। इवन आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो 50,000 से ज्यादा कैश में आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना सकते। Right, so obtaining a CDs या FDs, exchanging cashier check, demand draft, performing intra-bank transfers, performing wire transfer, depositing a refund check, transfer by check or monetary instruments, transfer funds outside and back. So these are methods of layering to confuse the customer or to confuse the authorities and the financial institution. Then integration. Integration is mila dena. So integration is the final step of money laundering, when the money which you have have obtained from illicit means is mixed with your legal money. That is integration, and after that it is difficult to even find it. So this is the third stage of money laundering. The integration used to create the appearance of legality through additional transactions such as loans and real estate deeds. Integration follows the layering stage. As mentioned in the placement stage, integration can be accompanied simultaneously with the placement of funds. These transactions provide the criminal with a plausible explanation as to where the funds came from to purchase asset and shield the criminal from any type of recorded connection to the funds. So एक बार integrate हो गया, उसके बाद आपको
पता ही नहीं है कि ये लीगल, मतलब देयर इज नो वे टू फाइंड आउट दैट दिस इज illegal money, right? So the best is to be careful at the placement stage. So और इन्वेस्टमेंट्स में भी जैसे देयर इज, हम जब म्यूचुअल फंड देख रहे थे तो वी हैड सीन दैट in case somebody wants to invest in mutual fund, he has to necessarily give a check. There are only some exemption about microsip for investment in cash. Otherwise, people have to give they'll have to do a bank link transaction for investing in mutual fund. So these are things to combat money laundering, to prevent money laundering. Right. So during the integration stage, the funds are returned in a usable format to the criminal source. It could be business, inflating business receipt, ओवर और अंडरवैल्यूइंग इनवॉइसेस. ये तो बहुत कॉमन है. आप जो बिजनेसमैन होते हैं, आई डोंट नो अब इतना होता है कि नहीं, बट क्योंकि आजकल तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बट पहले अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओ ना, तो ही विल से अगर आपको रिसीट चाहिए तो आपको ये इतने का पड़ेगा, रिसीट नहीं चाहिए तो इतने का पड़ेगा. मतलब अगर आपने रिसीट नहीं दी तो उसके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है. ही कैन शो, he will not show it as a sale, और सेल नहीं दिखाएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मैम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उससे ऐसे. हाँ, तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका हो सकता है. और ये तो सब कॉमन है, आपने भी देखा होगा कि कई दुकानदार जो है आपको रिसीट नहीं देना चाहते हैं. देन क्रिएटिंग फॉल्स इनवॉइसेस कि यहाँ से पैसा आया. establishing a foreign trust account, establishing a front company using gold bullion scheme. तो गोल्ड हमेशा से यूज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, and it was easy also, no? You just go and get your money converted into gold. So if you अगर आपको डिमोनेटाइजेशन में भी ऐसा बहुत हुआ है ना, जो भी जिनके पास भी पैसा था, they have gotten converted into gold. So these are some scheme, a few examples of integration stage. The possibilities are non-limited. और जितना पता चलते जाता है उस हिसाब से फिर नए नए तरीके आते जाते हैं. बट एज ऑफ नाउ जो भी पहले फ्रॉड हुए हैं, these are the things which were used. उसके अलावा भी there might be things, but you have to be careful about any kind of suspicious transaction. चाहिए तो हम कल देख. So these are some मैम examples. हाँ, yes. मैम जैसे कि मैम रियल एस्टेट मैम बाई करना, एंड मैम ये सारी चीजें मैम इंटीग्रेशन में मतलब स्टेप में आ जाएंगी. और क्या. यस मैम. राइट. एंड आपने सुना ही Yes, होगा ना ma'am. कि कोई खरीदता है तो बोलता है कितना कैश में देंगे. यस मैम. इंटीग्रेशन हो गया ना. आपकी Yes, वैल्यू, ma'am. आपने पेपर्स पे वैल्यू कम दिखाई है पर पैसा Yes, ज्यादा ma'am. दिया है. अब आपका क्या, आपका घर आपको एंड आपका कैश भी यूज एंड मैम जो मैम जैसे कोई घर मैम खरीदने जाओ तो कहते हैं ना कभी कभी कि आप 2 या 3 लाख रुपए मुझे कैश, कैश हाँ, में दे दीजिए और बाकी आप वो उसमें अकाउंट में दे दीजिए. मैम करेक्ट. ये भी एक तरह से वही हुआ ना. हाँ, और क्या, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है. और उसका रजिस्ट्रेशन जो है कम वैल्यू पे होगा. यस जैसे कि मैम जो गोल्ड वाला है मैम, वो तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप पे आ जाएगा ना. हाँ, गोल्ड वाला प्लेसमेंट में हो जाएगा. यस मैम. प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन साथ में हो रहा है. आपने करके रख लिया, फिर आप बता दो नहीं ये Yes, तो ma'am. मेरे दादी का ये तो खानदानी है. क्योंकि मैम उसका कोई वो तो है नहीं कि जैसे उसका अकाउंट हो कि किसने लिया, हाँ. किसके नाम पे है, ये सारा हाँ, तो कुछ राइट. नहीं तो है. वही अब ये Yes, ma'am. आ गई है. where the government is telling the jewelers, अब बहुत ज्यादा शायद इम्प्लीमेंटेड अभी नहीं हो पाई है, बट ये चीज आ Yes, गई ma'am. कि अगर आप you're buying from a jeweler,
यू हैव टू डू योर KYC। जूलर को भी हाँ रिकॉर्ड रखना है कि आपने ना- किसके किया। मैम, बट ऐसा भी तो होता है ना कि जो पहले की ज्वेलरीज होती थी जो आज की ज्वेलरीज है उनमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जितनी भी आज की ज्वेलरीज है वो आपको बिना ऑयल मार्क्स और बिना ऐसे नहीं मिलती हैं। करेक्ट। तो मैम ऐसे कोई कैसे शो करा बट सकता है? ऐसा होता है तभी तो क्यों इनकम टैक्स रेट्स होती है फिर, अगर सब लोग इतने ऑनेस्ट हैं और ऐसा नहीं हो रहा है तो इतने इनकम टैक्स रेट्स क्यों होती हैं? मैम बट उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना कि किसका मतलब किसने लिया या किसका है। ये हाँ, भी तो तो वही मैं चीज बता रही आती हूँ है। कि अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर भी काम कर रही है। यस मैम। गवर्नमेंट इज टेलिंग जूलर्स, एटलीस्ट बड़े जूलर्स, तो मैंने तो कम से कम तनिष्क में देखा है कि तनिष्क में अगर आप कुछ लेंगे तो आपको पूरा अपना नाम, पता, एड्रेस सब बताना पड़ेगा। यस ऐसे मैम। नहीं ले सकते। हो सकता है छोटे जूलर्स अभी, मतलब आपके जो खानदानी जूलर्स हैं उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, बट द गवर्नमेंट इज आस्किंग द जूलर्स आल्सो टू डू KYC व्हेन समबडी इज बाइंग गोल्ड फ्रॉम देम। तो खैर यू नो ऑनेस्ट लोगों को ये सब पता नहीं होता, बट कोई ना कोई तरीका निकाल के लोग अपना करते रहते हैं। गवर्नमेंट को जो पता लग, जैसे जैसे पता लगता है वैसे वैसे उसको कॉम्बैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैम हम्म, मैम जनरली ये देखा जाता है कि जिसके पास एक्सेस ऑफ मनी है मैम, मतलब सोर्स उसका जो भी है, मतलब तो वो मतलब हम्म, या तो रियल एस्टेट में डाल देंगे, मतलब खरीद लेंगे, और मतलब स्टेट वगैरह से स्टेट खरीद लेंगे, एंड या तो फिर गोल्ड वगैरह है, मतलब ये सारी करेक्ट, चीजें ज्यादा से हाँ, ज्यादा मतलब फिजिकल एसेट्स खरीदेंगे। करेक्ट, हाँ, ठीक है। यस मैम। जिसमें उसमें मतलब उनका पूरा कन्वर्जन हो जाए, मतलब फाइनेंशियल हम्म, सिस्टम में मनी इंटीग्रेट हो जाए। तो मैम करेक्ट। इससे मैम यही तो फायदा होता है कि मैम उसमें टैक्स वगैरह और मैम मतलब जब आप ये ना